Hi everyone, I am Sneha. Welcome to the Emerging Physios. और आज का टॉपिक होगा स्ट्रोक. इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है सर्कल ऑफ विलिस, that will be very important for this topic and for understanding the types of stroke and various vascular territories. So आप पहले वो सर्कल ऑफ विलिस वाली वीडियो देखो and then come back to. So for understanding stroke, we will correlate it with the term brain attack and heart attack. जैसे हमें already पता there is something called a heart attack and there is a thing called the brain attack. तो इसमें क्या होता है, why will brain attack come? आएगा ही क्यों वो? There must be a reason. So the reason lies in its definition कि there will be sudden loss of blood supply to the brain. जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई ही ब्लॉक हो जाएगा किसी भी रीज़न से, या ब्लॉक हो गया या फिर इट इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न, then there will be occurrence of the stroke. There is also another name for the stroke, that is CVA, cerebrovascular accident. So stroke की definition में हम mainly दो points याद रखेंगे. First is the sudden loss of the blood supply to the brain and second is the focal neurological deficits. कि कोई भी focal neurological deficit अचानक से person में present होगा. That could be sensory हो सकता है, motor हो सकता है, cognitive हो सकता है और perceptual हो सकता है. We know sensory, motor, cognitive and perceptual. Sensory में sensations will go and motor में motor function will be deprived. So what could be the possible reasons जिनकी वजह से stroke हो सकता है? So I have divided these on the basis of modifiable factors and non-modifiable factors. So पहले हम देखेंगे कि modifiable factors है कौन से, like cigarette smoking, tobacco use, physical inactivity, most important, obesity, diet, mainly the fatty diet जिसमें blood vessels में fat deposition हो जाता है. तो blood vessels की जो narrowing है वो हो जाएगी, जिससे there will be difficulty for the blood to get to its destination, है ना, and sleep. These we can modify, but the risk factors that are non-modifiable are increasing age. With age there is everything in last will come to this factor. So जैसे जैसे age बढ़ेगी there will be mainly due to the sedentary lifestyle, क्योंकि जैसे age बढ़ती है जो elderly people हैं वो mainly physically inactive रहते हैं, जिस वजह से there will be fat deposition in the blood vessel or that will lead to narrowing of the blood vessel. So the second factor is gender. Gender में क्या होता है कि women are more prone to the stroke rather than the males. लेकिन why is that so कि women are more prone to stroke? क्योंकि women mainly take ORCs. We all know ORCs क्या होते हैं, oral contraceptives, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती हैं ORCs. ये क्या करती हैं, these act as blood thickers, like opposite of the blood thinners. ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो इसको कर देती हैं इंक्रीज. ब्लड के विस्कस होने से क्या होगा, इट विल बी मोर कोएगुलेबल. लाइक जो ब्लड होगा वो जितना ज़्यादा थिन होगा इट विल बी मोर प्रोन टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स. और अगर क्लॉट्स हो जाएंगे so ultimately there will be a blockage in the blood vessel and loss of the sudden, and there will be the loss of blood supply to the brain. So
इस वजह से women are more prone to the stroke than the males. And race, it is more common in the African Americans. Another factor is hypertension or increase in the blood pressure, and diabetes, heart disease like myocardial infarction or atherosclerosis. I have already told you what is the pathology behind atherosclerosis and the loss of the blood supply. और MI होता क्यों है? MI is mainly due to the thrombosis or the. Now you should know कि thrombosis और embolus होता क्या है. Thrombosis में तो क्या होगा? Mainly a blood clot is there, but that is stable. Blood clot जो कि stable है, like जहाँ पर वो बना है वो उधर ही है, that is not movable. लेकिन embolus में क्या होता है? जो blood clot है वो unstable है. एम्बोलस जो है वो कहीं भी जाके अटैच हो सकता है टू एनी अदर प्लेस, और किसी भी सपोज कि कोई लार्जर ब्लड वेसल है, लार्जर ब्लड वेसल में वो बने जा रहा है, फैट डिपोजिशन हो ही जा रहा है, लिपिड्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो ही जा रहे हैं. सो देयर इज़ वेरी हाई फ्लो ऑफ द ब्लड प्रेशर, बट इट suddenly it dislodges from its position from the large artery, so it will come to the very small artery and will block its opening. So जो इसके अंदर जो ब्लड आना था, now यहाँ पे वो आ नहीं पाएगा. So this is the cerebral embolus. सो सेरेब्रल है, सो इट इज़ ऑब्वियस कि वो ब्रेन में ही होगा, ऑब्वियसली इन द सेरेब्रल आर्टरीज. इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू 3 आर्टरीज, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. ओके, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो. और अनदर रीज़न दैट कुड बी देयर इज़ द कंजेनाइटल एनॉमलीज. कंजेनाइटल एनॉमलीज मतलब जो बचपन से ही दे आर प्रेजेंट, मेनली दैट इज़ द आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन, AVM. सो AVM में क्या होता है, जो जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द कैपिलरीज. मेनली देयर इज अ कैपिलरी इंटरपोजिशन बिटवीन देम. सो इन दिस कंजेनाइटल एनॉमली जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है टू ईच अदर. देयर इज एन एब्सेंस ऑफ capillaries. So this could be a greater risk for the hemorrhagic stroke. Maybe I will tell you the types in next time. And another reason for that is the aneurysm. अब aneurysm क्या होता है, जो भी हमारी आर्टरी है, जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है, सो आर्टरी में देयर इज़ अ बल्ज, एक बल्ज प्रेजेंट हो जाता है जिससे जो ये आर्टरियल वॉल है ना, ये हो जाएगी थिन हो जाती है ये बहुत ज़्यादा. सो एक डायलेशन या बलूनिंग टाइप फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है इन द एन्यूरिज्म. सो मेनली चांसेस में क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन, जैसे जैसे कोई बच्चा है वो बड़ा होएगा, या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सो देयर आर 50% चांसेस कि जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर होगा ही होगा. सो जो आर्टरी है इट विल रप्चर, यहाँ से वो ऐसे फूट जाएगा, मतलब इट विल ब्रेक and there will be outflow of the blood, leakage of the blood in the brain. Mainly there are many types of aneurysms. So scapular and berry aneurysm are the most common that results in the stroke. And there's another factor, that is increase in the cholesterol levels. इसके पीछे भी सेम यही रीज़न है, that is the lipid deposition or the fat deposition and narrowing of the arteries. Okay, so this was all about the etiology or the risk factors of the stroke. अभी
आई विल टेल यू अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमने स्ट्रोक की बात करी थी, वी विल डू अ recap of the definition कि there are focal neurological deficits as well as there is sudden loss of blood supply to the brain, and that is known as the stroke. In this, there is one important thing, that is the I will change the pen color, that is the FAST acronym. FAST. ये एक एक्रोनिम है कि जो इनिशियल साइंस होते हैं, जैसे स्ट्रोक किसी को हुआ तो उसका ऑनसेट किसी को कैसे पता लगेगा. सो दिस एक्रोनिम इज गिवन बाय द AHA एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन and NSA. This is AHA and NSA. National, अब मैं जल्दबाजी में लिखूँगी थोड़ा सा, नेशनल स्ट्रोक एसोसिएशन. ठीक है, इन्होंने ये एक्रोनिम दिया है. अब इसका मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए. F से क्या होगा, फेशियल ड्रॉपिंग होगी, फेशियल ड्रॉपिंग होगी. A से होगा आर्म वीकनेस, S से होगा स्पीच डिफिकल्टीज. आई होप इट इज विजिबल. एंड T से है टाइम. So this is very important acronym to remember so as to know the initial signs of the stroke. कि अगर किसी को होगा so you will be able to identify कि इसको हो. So अब हम पढ़ेंगे types of stroke. Mainly पहले हम देखेंगे कि किस किस basis पर ये divided है stroke. So based on etiology, it is the most important जो etiology वाला होता है. So इसमें है ischemic stroke. Ischemic stroke पे क्या होगा, there is lack of blood supply to the brain, कि blood supply अचानक से बंद हो गया है, and that could be due to the embolism and thrombi. मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था what is embolism and what is thrombi. और एक है hemorrhagic stroke. हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें देर इज़ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, और वो क्यों हो सकता है, दैट कुड बी ड्यू टू द एन्यूरिज्म बिकॉज ऑफ द थिनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, एंड दैट कॉजेज द लीकेज ऑफ द ब्लड इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा. और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो फर्दर डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द एरिया वेयर द हेमरेज इज गोइंग टू अकर, intracerebral and subarachnoid. Intracerebral is the like in the brain parenchyma, and subarachnoid is the meningeal space. जो 3 meninges होती हैं, पाया, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं एज अ पैड, PAD, अंदर वाला arachnoid and outermost is the dura. सो जो ड्यूरा और अरैक्नोइड के बीच में है वो होता है सब ड्यूरल स्पेस, और जो पाया और अरैक्नोइड के बीच में होता है वो होता है सब अरैक्नोइड स्पेस. सो इस बेसिस पर ही इसका सेकंड टाइप है सब अरैक्नोइड हेमरेजिक स्ट्रोक. एंड जो सब अरैक्नोइड स्पेस होता है यहीं पर CSF होता है, एंड इट इज़ अ हाउस ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज मेनली. सो बेस्ड ऑन द वैस्कुलर टेरिटरीज हम देखेंगे कि जो कौन सी वेसल है, जो इससे पहले हमने सर्कल ऑफ विलिस में पढ़ी हैं कि कौन सी वाली अफेक्टेड है. रीजंस कुड बी डिफरेंट. सो लैक्यूनर, जिसमें लैक्यूनर आर्टरी कुड बी द
अफेक्टेड, एंड MCA में मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ACA में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. क्योंकि डिफरेंट आर्टरीज आर सप्लाइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सो सिम्टम्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग कि कौन सी, जैसे एंटीरियर जो सेरेब्रल आर्टरी है वो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, मिडल वाली मिडल सेरेब्रम को सप्लाई करती है. सो एंटीरियर सेरेब्रम एंड मिडल सेरेब्रम एंड पोस्टीरियर सेरेब्रम तीनों के डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट जोन्स है ऑफ फंक्शन. सो देयर इज PCA सिंड्रोम एंड वर्टेब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम. जो हमने देखा था नीचे, वर्टेब्रल आर्टरी विल merge and combine in the basilar artery, so there is a complete vertebro-basilar artery syndrome. So next we have based on the management categories. One is a transient ischemic attack. So इससे पहले I will tell you कि जो stroke है, stroke के जो neurological deficits हैं, neurological deficits should persist for more than 24 hours, देन ओनली हम उसको एज अ स्ट्रोक डिफाइन करेंगे. अगर जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वीकनेस, फेशियल ड्रॉपिंग, आई हैव टोल्ड यू द एक्रोनिम, अगर ये सिम्टम्स 24 आवर्स से कम रहते हैं, देन दैट इज़ नॉट स्ट्रोक, दैट इज़ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. सो मेनली हम इसको इन द टाइप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के बेसिस पर है कि स्टार्टिंग में अगर किसी को कुछ मिनट्स भी हो सकता है, ये जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है मिनट्स से लेके सेवरल आवर्स तक रह सकता है, लेकिन इट विल नॉट एक्सीड 24 आवर्स, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 24 आवर्स. हमेशा 24 घंटे से कम ये रहेंगे जो इसके सिम्टम्स होंगे स्ट्रोक के. सो देन हम इसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलेंगे. इट हैव अ मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज़ कि इट विल टेल अस अबाउट द प्रिकर्सर टू द cerebral infarction and myocardial infarction. पहले ही हमें पता लग जाएगा कि the susceptibility to the stroke is higher in that person who will have TIA. And other are minor stroke, major stroke, deteriorating stroke and young stroke. So this was all about the types of stroke. Thank you.